Hello fourth class, how are you all? I hope you all are fine. Let's start today's SS class. Students, as you know, we are doing block 3 indoor and outdoor games. And we already know about some indoor games and some outdoor games. So today we will learn about the importance of playing a game in a sequence. So we should follow the rules in a sequence. I hope it is clear to you all. So here are the list of rules of गेम कबड्डी. ये कबड्डी गेम के रूल्स हैं. आर दीज रूल्स आर इन सीक्वेंस? सो व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? अ प्लेयर फ्रॉम टीम ए विल रन अक्रॉस टू टीम बी. Team A and team B will stand on two sides of the court. So as we can see, these rules are not in the sequence. Students, what can you do to make it to manage the rules in a sequence? Students, tell me, why do we need a sequence when we play a game? जब हम गेम प्ले कर रहे होते हैं तो हमें सीक्वेंस की नीड क्यों होती है? Let's discuss the answer. We need a sequence in a game to know what to do first and what to do next when we play the game. So हमें सीक्वेंस की नीड इसलिए होती है ताकि हमें पता हो कि हमें फर्स्ट क्या करना है एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है. क्लियर? Without a sequence, we would not be able to follow the rules of the game. I hope the explanation is clear to you all. Students, you can see the sequence. These are the rules, these are the sequence. So firstly we have to do in the kabaddi, the players are divided into team A and team B. This is first order. Then team A and team B will stand on two sides of the court. Then a player from team A will run across to team B. A player from team A will touch any player from team B without getting caught. Clear? The player from team A is caught by team B and is out. So जो भी player the player from team A is caught by team B. team A के player को team B का कोई भी player अगर उसको पकड़ लेगा तो वो प्लेयर जो है वो आउट हो जाएगा. क्लियर? टीम बी अगर टीम ए के उस प्लेयर को पकड़ लेगी तो जो टीम ए का वो प्लेयर है वो आउट हो जाएगा गेम से. अ प्लेयर फ्रॉम टीम बी विल नाउ रन अक्रॉस टू टीम ए टू टच वन ऑफ दैम. सो उसके बाद क्या होता है कि टीम बी का एक प्लेयर टीम ए की तरफ जाता है ताकि वो उनमें से किसी एक को टच कर सके. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द सीक्वेंस and the rules that you have to follow in the sequence. Now students, do you know why is it important to follow the rules in a game? गेम में रूल्स को फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस लेसन. रूल्स टेल्स अस व्हाट वी शुड डू एंड शुड नॉट डू इन अ गेम. रूल्स से हमें पता चलता है कि हमें एक गेम में क्या करना चाहिए और क्या जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए. They help us to play a fair game. Clear? Now it's time for higher order thinking question. Question is, what should we do when someone doesn't follow rules? हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो? We can explain to them why it is important to play fairly so that everyone enjoys the game. I hope What's explanation is clear to you all. Now students, it's time for reading. Please open your content book. Lesson number 2, local games. There are some games such as kabaddi, kho-kho, gilli danda and marbles that are commonly played in Indian towns or villages. Each of these games has a set of rules which players have to follow. इन गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें सब प्लेयर्स को फॉलो करना होता है. Although kabaddi began as a local game, today it is a very popular outdoor sport in India. आज कबड्डी बहुत ज़्यादा पॉपुलर आउटडोर स्पोर्ट है. The game needs 7 players, each in 2 teams. So हर एक टीम में 7 players होते हैं. टीम A में भी 7 players, टीम B में भी. Let us call them team A and team B. They stand in 2 halves of the court. You can see in the picture. ये कोर्ट के 2 हाफ में स्टैंड है. हाफ में टीम ए एंड हाफ में टीम बी. अ प्लेयर फ्रॉम टीम ए हैज़ टू रन
across the center line and touch any player of the team B while saying कबड्डी कबड्डी. सो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए टीम ए के एक प्लेयर को टीम बी के किसी भी प्लेयर को टच करना होता है. देन शी हैज़ टू रन बैक टू द सेंटर लाइन विदाउट गेटिंग कोट. और उसको फिर जल्दी से टीम बी के प्लेयर को टच करके वापस अपने सेंटर में वापस से पहुंचना है. सेंटर लाइन से दूसरी तरफ जाना है जहाँ पे उसका कोर्ट है. और उसको इस बात का ध्यान रखना कि उसे टीम बी पकड़ ना ले. यू कैन सी इन द पिक्चर टीम ए के जो एक प्लेयर है वो आया है सेंटर लाइन से इस तरफ और टीम बी के प्लेयर्स को टच करने की कोशिश कर रहा है. क्लियर. सो थर्ड रूल, इफ़ द प्लेयर गेट्स कोट बाय द प्लेयर्स ऑफ टीम बी शी विल बी आउट ऑफ द गेम. If not, team A scores a point if the player can touch anyone from team B. So अगर टीम B ने टीम A के प्लेयर को टच कर लिया, पकड़ लिया, उसको कोट कर लिया, तो फिर टीम A का प्लेयर आउट हो जाएगा गेम से. और अगर उसको नहीं पकड़ा गया तो उसकी टीम को एक स्कोर मिलेगा. टीम A को एक स्कोर मिल जाएगा, एक पॉइंट मिलेगा. क्लियर. फोर्थ रूल, द प्लेयर फ्रॉम टीम B will run across the center line and touch any player of team A while saying kabaddi kabaddi. उनको कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है. Then she has to run back to the center line without getting caught. और उसके बाद उसे फिर से सेम चीज़ें करनी पड़ती हैं जैसे कि टीम A के प्लेयर ने किया था. टीम B का प्लेयर उस तरफ जाएगा और किसी भी एक प्लेयर को टच करके वापस आएगा. Teams get points for touching the player of the opposite team. The team that touch the highest number of players become the winning team. So, जो भी टीम ज़्यादा प्लेयर्स को टच करके वापस अपने कोर्ट में आ जाएगी वही टीम विनर हो जाएगी. I hope this lesson is clear to you all students. Did you know kabaddi is believed to be a 4,000-year-old sport which originated इन तमिलनाडु इंडिया, जो कि इंडिया के तमिलनाडु में सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ किया गया था इस गेम को. और इसको कितना पुराना गेम माना जाता है? 4,000 ईयर ओल्ड. स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज प्रैक्टिस क्वेश्चन. वी विल डिस्कस दीज प्रैक्टिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस लेसन प्लान. आई होप दिस लेसन इज क्लियर. नाउ वी हैव द कीवर्ड विच इज सीक्वेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? टू अरेंज इन ऑर्डर में अरेंज करना. नेक्स्ट, प्लीज़ ओपन योर वर्कशीट 3.2 लोकल गेम्स. फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट से आपको वर्ड्स चूज़ करने हैं और ब्लैंक्स को फिल करना है. ए पार्ट, कबड्डी इज़ एट डैश गेम बिकॉज इट कैन ओनली बी प्लेड इन अ प्ले ग्राउंड. सो कबड्डी कैसा गेम है? इंडोर और आउटडोर? क्योंकि इसको प्ले ग्राउंड में प्ले किया जाता है. सो इट इज़ अ आउटडोर गेम. So students, tell me, there are dash players in each team. How many players in each team? Yes, 7 players. Next question. Question number 2. Look at the pictures carefully. Arrange them in the correct sequence by writing 1, 2, 3, 4. So आपको इस पिक्चर को करेक्ट जो एक ऑर्डर है उसमें अरेंज करना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. सो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? टीम ए और टीम बी जो है वो अपने अपने हाफ कोर्ट में खड़े हो जाते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज़ दिस वन इज़ फर्स्ट पार्ट. आफ्टर दैट टीम ए का कोई भी मेंबर जाता है टीम बी के पास. सो दिस वन इज़ सेकेंड पार्ट. आफ्टर दैट टीम बी उसको पकड़ने की ट्राई करते, उसको कोट करते हैं. सो दिस इज़ थर्ड पार्ट और दिस इज़ द विनिंग पार्ट. सो दिस इज़ द फोर्थ पार्ट. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैपन इफ़ वी डोंट फॉलो रूल्स इन अ गेम? अगर हम गेम्स में रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्टूडेंट्स, इफ़ वी डोंट फॉलो रूल्स इन अ गेम देन सम प्लेयर्स मे चीट एंड विन द गेम. Students, you have to complete this worksheet. Now you have to complete these practice questions. First question is write true or false. A part, kabaddi is an outdoor game. Is it true or false? So you have to write down. B part, there are 2 teams and 7 players in kabaddi. So 2 teams होती हैं और 7 players होते हैं कबड्डी में. Clear? So you have to complete it. Kabaddi is played with bats and balls. बैट्स और बॉल्स के साथ हम प्ले करते हैं कबड्डी को. सो यू हैव टू राइट डाउन ट्रू एंड फॉल्स.
आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी डू फर्स्ट वाइल प्लेइंग कबड्डी. सो हम फर्स्टली जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है, यू हैव टू राइट डाउन रन टू टैग प्लेयर फ्रॉम द अपोजिट टीम और गेट इन टू टीम्स. कौन सा होता है फर्स्ट टाइम पे, यस, गेट इन टू टीम्स एंड आफ्टर दैट रन टू टैग प्लेयर फ्रॉम द अपोजिट टीम. थर्ड क्वेश्चन, इमेजिन यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद योर फ्रेंड्स. व्हाट रूल्स डू यू हैव फॉर दिस गेम. सो आपको बताना है हाइड एंड सीक के रूल्स कौन से होते हैं एंड आफ्टर दैट बी पार्ट, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू फॉलो रूल्स, और रूल्स फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है. गिव एनी 3 रीजन्स. आपको इसके बेस पे 3 रीजन्स भी देने हैं. आई होप दिस लेसन प्लान इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.